Rahmatullahi wa barakatuh. In this particular class, we are going to discuss about the topic relative velocity. So this is from motion in a plane chapter. All right. So what do you mean by relative velocity? I hope before also I have given you a few things, something about frame of reference. We have already talked on this frame of reference. Yes. So I had given you an example wherein there is a train moving. Yeah, there is a train moving, for example, on the tracks. Yes, and there is a person who is standing on a platform. All right, this is person A, for example. Person B is inside the train. Okay, so for person A, train is moving, and he gets the actual velocity of train, whereas for B, who is sitting inside the train, for him what happens is he velocity of the train and velocity of the boy both will be the same. Since he is sitting inside the train, what is happening is the frame of reference, when you consider boy B, he himself is the frame of reference. When he observes as he is sitting inside the train, he feels that he is at rest because train is moving and he is moving along with the train. So there is since the frame of reference he himself is moving, what happens is he feels as if he is going along with the train. So inside the train, with respect to the train, he is at rest. Yes. So similarly, if there are two particular trains moving, yes, say train A and train B both are moving, what happens now? For the person, if both are traveling with say same velocities, then the person sitting in A to the person sitting in B, both if they are going with the same velocities and have say they are going simultaneously, यानी एक साथ चल रहे हैं, so what happens is each one, the person in A feels that person B is not moving and person in B feels that person A is not moving. यानी जब दोनों एक ही स्पीड के साथ चलते रहेंगे, you feel that relative to each other they are at rest. But for a person standing outside, for him, this he clearly understands that body A is also moving, body B is also moving. So I hope this is clear. Now matter क्या करता है, what matters the most is from where are you observing. If the observer is at rest, he is at ground and outside the system, then he gets the true values, meaning he comes to know with what velocity the train is moving, whatever velocity the bird is flying, everything he comes to know. But if the person himself is moving, then we need to consider, this is like person in ground, उसकी ये एक्स एंड वाई एक्सिस है, ये ऑब्जेक्ट है जो मूव कर रहा है. तो फिर अगर ये बंदा, इफ़ द ऑब्जर्वर इज़ एट रेस्ट, इट्स ईजी टू जज. But if the observer is also moving along with the body, then now we need to consider the velocity with which the observer is moving and how it is moving. So with this, we'll come to the definition of relative velocity. Relative velocity of an object. Relative velocity of an object A with respect to another object B is time rate at which the object A changes its position with respect to object B. So this is the definition. Relative velocity of an object A with respect to object B is time rate at which the object A changes its position with respect to object B. I hope this definition is clear. So let us move forward. Let us take an example. Let us say that there is a body A which is moving with velocity VA, and there is another body B which is moving with velocity VB. So here
relative velocity, how will we write? We'll write velocity of b with respect to a, velocity of b with respect to a is written as vba. Just observe, velocity of b with respect to a, this is how you read. I hope you are getting it. velocity of b with respect to a, तो अगर मैं वी ए बी लिखूँगा तो इट इज़ वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, velocity of a with respect to b. So vba will be equal to, we'll write velocity of b minus velocity of a. This is the way of writing the relative velocity. And to be honest, vb minus va जो हमने लिखा है, this can also be told as vbg minus vag. What is g here? G here is basically ground. So velocity of b with respect to a, this is called relative velocity of b with respect to a, is given as velocity of b with respect to ground minus velocity of a with respect to ground. तो एक्चुअल वेलोसिटीज़ का डिफरेंस लिया जा रहा है, एंड ऑब्वियसली ये दोनों एक साथ एक डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो वी बी माइनस वी ए करेंगे टू गेट वी बी ए. एंड इफ़ आई राइट वी ए बी, इफ़ आई हैव टू राइट वी ए बी, that is velocity of a with respect to b, I'll be writing as va minus vb, va minus vb. This will be the formula. Now in the first one, if vb is greater than va, if vb is greater than va, यानी second body is moving faster than the first body, yes, क्या होगा? relative separation increases with time. रिलेटिव सेपरेशन इंक्रीजेस विथ टाइम. क्या मतलब है रिलेटिव सेपरेशन का? अगर वी बी ज़्यादा है वी ए से, यानी जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, वक्त टाइम आगे बढ़ेगा, वी बी इज़ गोइंग फास्टर, वी ए इज़ कंपैरेटिवली स्लोअर, सो द डिस्टेंस बिटवीन देम विल बी इंक्रीजिंग, मीनिंग द सेपरेशन बिटवीन द टू बॉडीज़ विल इंक्रीज. इसलिए बोला है रिलेटिव सेपरेशन इंक्रीजेस विथ टाइम. हमारे फॉर्मूलाज के हिसाब से इसको बोलते हैं एस रिलेटिव. ठीक है. और अगर इसी चीज़ में इफ़ सेकेंड केस, इफ़ वी बी इज़ लेस देन वी ए, अब देख लो, थोड़ा फिगर देख लो, वी बी इज़ लेस देन वी ए, व्हाट विल हैपन? वी बी इज़ लेस देन वी ए मतलब सेकेंड बॉडी इज स्लोअर देन फर्स्ट बॉडी, ऑब्वियसली फर्स्ट बॉडी विल क्रॉस सेकेंड बॉडी आफ्टर सम टाइम, यस. तो अब यहाँ पर रिलेटिव सेपरेशन डिक्रीजेस विथ टाइम, रिलेटिव सेपरेशन डिक्रीजेस विथ टाइम. आई होप दिस इज़ क्लियर, यस. तो ये हो गया. दूसरा, अगर एक तो बॉडी ऐसे मूव कर रहे थे दोनों, अगर मैं कहूँ अभी इस बार इंस्टेड ऑफ दिस गए मूव्स इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, ए और बी है, इसका वी ए है, इसका वी बी है, लेकिन ये बंदा ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, ये एक नया केस है. इफ़ टू बॉडीज़ आर मूविंग टूवर्ड्स ईच अदर, नाउ द वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी विल बी वी ए माइनस वी बी. आपका फॉर्मूला था वी ए माइनस वी बी, बट यहाँ पर वी बी को माइनस लूँगा बिकॉज वी ए अगर राइट साइड में पॉजिटिव ले रहा हूँ तो ये बंदा नेगेटिव हो गया. तो वी ए बी वॉज वी ए माइनस वी बी, बट वी बी इज़ नेगेटिव इन इट सेल्फ, तो यू गेट द आंसर वी ए प्लस वी बी. यानी रिलेटिव वेलोसिटी adds up, is the addition of the two velocities if the bodies are moving towards each other. Just have a look what has been done till now. ये बेसिक रहा यहाँ तक जो भी हमने डिस्कस किया है. फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात की, फिर जो है थोड़ा ट्रेन और पैसेंजर का एग्जांपल दे दिया. देन मैंने ये भी बताया कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस खुद मूव हो रहा है तभी तो रिलेटिव वेलोसिटी वाली चीज़ आती है. डेफिनेशन ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी बात किया हमने. उसके बाद वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए, वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी. और दूसरी बॉडी अगर फास्टर है तो क्या होगा, पहली बॉडी अगर फास्टर है तो क्या होगा, रिलेटिव सेपरेशन को बढ़ेगा कम होगा. किस केस में बढ़ेगा, जाहिर सी बात है जब सामने वाली बॉडी फास्टर है, और रिलेटिव सेपरेशन कम होगा जब सामने वाली बॉडी स्लो है और दूसरी पिछले वाली यानी द वन विच इज़ बिहाइंड इट इज़ मूविंग फास्टर. ओके. एंड द लास्ट केस, if they are moving in the opposite direction, what is happening? Clearly velocity must be added. Yes. So I hope till here it is clear. Now let us take a question will be solved. Make a note of the question.
A train is moving with a velocity 50 meters per second. Train is moving with a velocity 50 meters per second. Train is moving with a velocity 50 meters per second, having length 100 meters. Having length 100 meters. ठीक है. Train is moving with a velocity 50 meters per second, having length 100 meters. इसके बाद a bird is flying in the direction of the train. A bird is flying in the direction of the train. काम करते हैं, ट्रेन को थोड़ा बड़ा बना देते हैं, नहीं तो मुश्किल होगा. We'll take this train. Yes, is moving with 50 meters per second. Yes, and the length of the train is 100. Length of the train is 100. बहुत याद रखना पड़ेगा कि क्या कितना ट्रैवल कर रहा है, वो डिस्टेंस दिया है या लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट खुद दिया है. Okay, I repeat the question. A train is moving with velocity 50 meters per second, having length 100 meter. A bird is flying in the direction of train with velocity 25 meters per second. A bird is flying. A bird is flying. ये हमारा bird है. It is flying. Bird is flying in the direction of the train. Same direction डाल दिया है. With velocity 25 meters per second. So bird is moving with the same with a velocity of 25 meters per second, but same direction of the train. Then the question is, then find the time taken by the train to cross the bird. Find the time taken by train to cross the bird. This is your question. I hope the question is clear. A train is moving with a velocity 50 meters per second, having length 100 meter. A bird is flying in the direction of the train with velocity 25 meters per second. Then find the time taken by the train to cross the bird. तो यहाँ पर इसको कैसे सॉल्व करेंगे? साफ सीधी बात है, एक तो कॉमन सेंस है. बर्ड 25 मीटर्स पर सेकंड में जा रही है, ट्रेन 50 में. तो ट्रेन ऑब्वियसली फास्ट है, तो क्वेश्चन तो सही है कि कितने टाइम में ट्रेन क्रॉस कर जाएगी बर्ड को. यस, तो क्रॉस करने के लिए ट्रेन क्रॉस कर जाएगी, इसका मतलब तभी आएगा जब पूरी की पूरी ट्रेन इस बर्ड को क्रॉस करेगी. हैजंट इट? क्रॉसिंग डज नॉट मीन कि जस्ट फ्रंट हिस्सा क्रॉस कर दे तो हो जाए. क्रॉसिंग का मतलब है पूरी की पूरी ट्रेन इस बर्ड को क्रॉस करके निकलना है. ओनली देन वील कंसिडर दैट इट हैज़ क्रॉस्ड. सो टाइम जो पूछ रहा है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय वेलोसिटी इज़ द नॉर्मल फार्मूला, डिस्टेंस बाय वेलोसिटी. लेकिन अब ये क्योंकि दोनों एक साथ जा रहे हैं, दोनों का मूविंग है, तो रिलेटिव डिस्टेंस बाय रिलेटिव वेलोसिटी. टाइम इज इक्वल टू रिलेटिव डिस्टेंस बाय रिलेटिव वेलोसिटी. रिलेटिव डिस्टेंस कितना है दोनों का? बर्ड का लेंथ तो कंसिडर नहीं किया जाएगा, बहुत छोटी होती है. तो लेंथ ऑफ द ट्रेन 100 दिया है, तो रिलेटिव डिस्टेंस विल बी टेकन एज 100 डिवाइड बाय रिलेटिव वेलोसिटी. अब रिलेटिव वेलोसिटी कैसे लेंगे? जाहिर सी बात है, 50 इज़ द वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ द बर्ड. यस, सो दिस विल गिव यू द आंसर. यस, 100 बाई 25 आएगा, यानी आंसर 4 सेकेंड्स में आएगा. यानी 4 सेकेंड्स में ट्रेन बर्ड को क्रॉस कर जाएगी. यस, अगर इसी में समझो कि बर्ड, इफ़ दिस बर्ड वॉज ट्रैवलिंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, ट्रेन ऐसे जा रही है, बर्ड ऐसे जा रही है, तो फिर क्या होता? इफ़ बोथ आर ट्रैवलिंग ऑपोजिट, तब ये रिलेटिव वेलोसिटी है ना, ये प्लस हो जाता. ठीक है, क्योंकि दोनों जो ट्रैवल कर रहे हैं क्रॉसिंग के सपोर्ट में जा रहे हैं. अब ये जो अभी ट्रैवल कर रहे हैं, दे आर अगेंस्ट द ट्रैवलिंग ना, क्रॉसिंग के अगेंस्ट है. क्रॉसिंग किसको बोलते हैं? जब दो चीज़ें एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं. अब यहाँ पर बर्ड भी ऐसे जा रहा है, ट्रेन भी ऐसे जा रहा है, तो ये एक ही डायरेक्शन में था, उसलिए एक दूसरे से माइनस किया. बट वेर एज अगर बर्ड उल्टा जा रहा था, तो फिर टाइम का फॉर्मूला क्या होगा? डिस्टेंस रिलेटिव डिवाइडेड बाई द वेलोसिटी विच विल बी एडेड, बिकॉज ट्रेन भी सपोर्ट कर रहा है क्रॉसिंग को, बर्ड भी सपोर्ट कर रहा है क्रॉसिंग को. तो दिस वुड हैव बीन प्लस अगर बर्ड वॉज ट्रैवलिंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन. आई होप दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज़ क्लियर. यस, तो इसी तरीके से लेट अस मूव ऑन टू अनदर क्वेश्चन. यस, फॉर एग्जांपल एक और क्वेश्चन ऐसे ले लेते हैं. एक बॉडी है जो ऐसे जा रही है, एक बॉडी ऐसे जा रही है. लेट अस से दिस बॉडी ए, दिस इज बॉडी बी. ये क्वेश्चन यहाँ ख़त्म हो गया. ए एंड बी जा रही है. ए जो है 45 से जा रहा है किलोमीटर्स पर आवर. यस, बी जो है 45 किलोमीटर्स पर आवर से जा रहा है. ठीक है, दोनों के बीच में 5 किलोमीटर की डिस्टेंस है फॉर एग्जांपल.
तो कितने टाइम में एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। अगर ये क्वेश्चन पूछेगा तो सीधा सीधा डिस्टेंस 5 किलोमीटर्स बाई रिलेटिव वेलोसिटी 45 + 45, ये आपका आंसर आएगा। ठीक है, क्लियर है। और अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, फॉर एग्जांपल क्वेश्चन ये पूछ रहा है फॉर एग्जांपल ये जो अभी मैंने बताया ये तो दोनों को एक दूसरे को क्रॉस करने के लिए था। अगर कहेगा कि तीसरी बॉडी है बॉडी सी जो कि 90 किलोमीटर के स्पीड से 90 kmph से ऑपोजिट टू ए आ रही है, तो अब बोलेगा या फिर ऐसे स्टेटमेंट देगा बॉडी ए इज़ मूविंग एट 45 किलोमीटर्स, सॉरी आई जस्ट शो इट, body A is moving at 45 kilometers per hour, body B is moving in the opposite direction at the same speed. There is a third car, you can say, third car, that is C, moving at 90 kilometers per hour in the direction of B. Then what is the time taken for body A and C to cross each other? Body A and body C to cross each other. अगर ये सवाल है तो फिर जाहिर सी बात है डिस्टेंस, रिलेटिव डिस्टेंस डिवाइडेड बाय, अब 45 ए की स्पीड है, 90 दूसरे की स्पीड है। तो इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे। आई होप दिस पर्टिकुलर टॉपिक इज़ क्लियर ऑन दिस। तो इसी तरीके से अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 2 क्वेश्चन तो हो गए। अगला क्वेश्चन है, आई एम डिक्टेटिंग, प्लीज़ नोट इट डाउन। अ लिफ्ट इज़ मूविंग अप with acceleration 1.2 meters per second square. A lift is moving up with acceleration 1.2 meters per second square. पहली लाइन है क्वेश्चन की, a lift is moving up with acceleration 1.2 meters per second square and a bolt on roof of the lift बोल्ट यानी आपका स्क्रू है, स्क्रू समझ लीजिए। अ बोल्ट ऑन रूफ ऑफ लिफ्ट loosens and falls to the floor with height 11 meters। ठीक है, एक लिफ्ट है जो ऊपर को जा रही है। लिफ्ट इज मूविंग अप विथ एक्सेलरेशन 1.2 meters per second square and a bolt on roof of lift loosens and falls to the floor with height 11 meters. Then time taken by the bolt to touch the floor of the lift. Then time taken by bolt to touch the floor of lift. ये हमें पहचानना है। क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझें पहले। अ लिफ्ट इज मूविंग अप विथ एक्सेलरेशन 1.2 meters per second square। ये रहा लिफ्ट जो कि एक्सेलरेशन 1.2 meters per second square से ऊपर की तरफ जा रहा है। एंड अ बोल्ट ऑन द रूफ, यहाँ से एक मेख अंदर से यानी अंदर के हिस्से से लूज़ होके नीचे गिरना शुरू हो गया। अब जो गिर रहा है विथ हाइट 11 मीटर, मतलब ये ट्रैवल जो कर रहा है वो 11 मीटर है। लिफ्ट का हाइट 11 मीटर नहीं है। यहाँ पर ये देखो, ये जो बोल रहा है लिफ्ट ऊपर जा रहा है, बोल्ट नीचे आ रहा है। यस, बोल्ट का ट्रैवलिंग डिस्टेंस 11 है। दैट इज़ व्हाट ही इज ट्राइंग टू टेल। एंड द टाइम टेकन बाय द बोल्ट टू टच द फ्लोर ऑफ द लिफ्ट। क्लियर है। तो इस केस में क्लियर कट क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ द बोल्ट यहाँ पर जो है ये जी है, एक्सेलरेशन ऑफ द बोल्ट जी है, डाउनवर्ड्स है। ठीक है, तो रिलेटिव एक्सेलरेशन इज ए प्लस जी। आई होप दिस इज क्लियर। ए दिख रहा है, ए सीधा सीधा ऊपर जा रहा है। एक्सेलरेशन ऑफ द बोल्ट यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है इस केस में, तो ये जी नीचे को जा रही है, ए ऊपर को जा रहा है। रिलेटिवली बोथ द एक्सेलरेशंस मस्ट बी एडेड अप। ठीक है, रिलेटिव डिस्टेंस क्या होगी, ओके, रिलेटिव डिस्टेंस होगी 11 मीटर। मैंने पहले ही बताया रिलेटिव डिस्टेंस इज 11 मीटर। मैंने बताया था रिलेटिव 11 मीटर जो है वो बोल्ट ट्रैवल कर रहा है। ठीक है ना। अब कैसे सॉल्व करेंगे, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर ले सकते हैं क्योंकि एक्सेलरेशन आ गया ना यहाँ पर। एस रिलेटिव इज इक्वल टू यू रिलेटिव इंटू टी प्लस हाफ ए रिलेटिव इंटू टी स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला रहेगा।
ठीक है, तो 11 एज इट इज़। यू रिलेटिव, शुरू में तो रिलेटिव वेलोसिटी यू 0 पे थी ना, क्योंकि बोल्ट फिक्स्ड था पहले, हजंट इट, तो पहला टर्म 0 हो जाएगा। हाफ ए की जगह 1.2 बोला है, 9.8 हम जानते हैं, ए प्लस जी कर लिया इंटू टी स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे, 11 इज इक्वल टू हाफ 9.8 प्लस 1.2 फिर 11 आएगा और टी स्क्वायर। तो यूजुअली पेपर्स भी जो देते हैं ना, सीधा सीधा कैलकुलेशन आसान हो वैसा ही देते हैं। तो टी का वैल्यू क्या आया, √2 सेकेंड्स, यानी 1.414 seconds. So this is your answer. Just go through what has been done. Yes, I have enough zoom. Yeah, तो have a look कैसे हमने सॉल्व किया है, ठीक है। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं टू द नेक्स्ट पर्टिकुलर, ओके नाउ इट इज़ क्लियर। द नेक्स्ट पर्टिकुलर क्वेश्चन, मैं डिफरेंट क्वेश्चंस जो रिलेटिव मोशन में हुए हैं उसी की बात कर रहा हूँ। अ बोट ट्रैवल्स इन रिवर अ बोट ट्रैवल्स इन रिवर इन डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम किसको बोलते हैं, अपस्ट्रीम किसको बोलते हैं, ये समझ लो पहले। पानी अगर ऐसे जा रहा है, पानी का डायरेक्शन अगर ऐसा है और आप भी ऐसे ही तैर रहे हो फॉर एग्जांपल, यस, सेम डायरेक्शन में तैर रहे हो, तो इसका मतलब डाउन स्ट्रीम है, ठीक है। डाउन स्ट्रीम यानी पानी के हिसाब से जा रहे हो। अपस्ट्रीम का मतलब क्या होगा, पानी ऐसे जा रहा है और बंदा जो है उल्टा तैर रहा है, पानी के खिलाफ जा रहा है, ठीक है। तो अब दो वेलोसिटीज़ ऐसे हैं, अब इसको अपस्ट्रीम कहेंगे, यानी पानी के खिलाफ। आई होप दिस टू थिंग्स आर क्लियर। पानी के साथ यानी सेम डायरेक्शन ऑफ द रिवर इज कॉल्ड डाउन स्ट्रीम and opposite direction to the river is called upstream. Now write down the question. A boat travels in river in downstream with velocity 8 kilometers per hour. A boat travels in river downstream. बोट है, ठीक है, ट्रैवल्स इन रिवर, ये वाटर ले लेता हूँ, ठीक है, तब विथ वेलोसिटी 8 किलोमीटर्स पर आवर kmph, ठीक है। I'm reading the question. A boat travels in river in downstream with velocity 8 kilometers per hour. Takes 6 hours to travel between A and B. Takes 6 hours. Takes 6 hours to travel between A and B. Takes 6 hours to travel between A and B. A boat travels in river in downstream with velocity 8 kilometers per hour. Takes 6 hours to travel between A and B. It takes 10 hours in the upstream. It takes 10 hours इन द ए एंड बी के बीच में फिर जाने के लिए 10 आवर्स लेगी अगर अपस्ट्रीम है, मतलब बोट ऐसे जा रही है, पानी का डायरेक्शन ऐसे है, अपस्ट्रीम में 10 आवर्स लेगी, ठीक है। ये डाउन स्ट्रीम है, ये अपस्ट्रीम है। इट टेक्स 10 आवर्स इन द अपस्ट्रीम। अब हमें क्या बोलना, व्हाट इज ही आस्किंग, देन फाइंड टाइम टेकन बाय द बोट टू ट्रैवल इन स्टिल वाटर। वी नीड टू फाइंड द time taken by the boat, yes, time taken by the boat to travel in still water, मतलब पानी खड़ा हुआ है उसमें ए से बी जाने के लिए। तो पहला केस क्या है, ए से बी जाने के लिए बोट जब जाएगी इन द सेम डायरेक्शन ऑफ रिवर, तब ले रहा है 8 की स्पीड से जा रही है, 6 घंटा ले रहा है। अगर वही ए और बी के बीच में बोट जा रही है, ठीक है, आपकी बोट जा रही है, पानी उल्टा है, तो फिर कितनी स्पीड से जा रही है, 10 घंटा ले रही है, ठीक है। इट इज़ टेकिंग टेक्स 10 आवर्स इन द अपस्ट्रीम, ठीक है। और अब हमें पहचानना है, अगर ए और बी के बीच में पानी की कोई वेलोसिटी नहीं है, वेलोसिटी ऑफ वाटर इज़ 0, नाउ द बोट हाउ मच टाइम विल इट टेक टू गो, दिस इज़ योर क्वेश्चन, ठीक है। तो लेट अस ट्राई टू सॉल्व दिस थिंग। हाउ विल वी सॉल्व क्वेश्चन, साफ सीधा मैंने स्टेटमेंट समझा है आपको। व्हाट डज द क्वेश्चन से, अ बोट ट्रैवल्स इन रिवर इन डाउन स्ट्रीम विद वेलोसिटी 8 किलोमीटर्स पर आवर, टेक्स 6 आवर्स टू ट्रैवल बिटवीन ए एंड बी, इट टेक्स 10 आवर्स इन द अपस्ट्रीम, देन फाइंड द टाइम टेकन बाय द बोट टू ट्रैवल फ्रॉम ए टू बी इन स्टिल वाटर, ठीक है। टाइम टेकन फॉर डाउन स्ट्रीम ईजी से लिख सकते हैं, टाइम टेकन बाय डाउन स्ट्रीम इज डिस्टेंस जो ट्रैवल कर रही है बाई स्पीड, डिस्टेंस है ए बी, वेलोसिटी कितनी है, वेलोसिटी ऑफ द बोट प्लस वेलोसिटी ऑफ द रिवर। ये प्लस क्यों डाला मैंने, क्योंकि पानी और बोट दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रही है, पानी बोट को सपोर्ट कर रहा है,
तो थोड़ा ये कन्फ्यूजन बहुत होता है रिलेटिव वेलोसिटी टॉपिक में। कन्फ्यूजन क्या है, मैंने तब थोड़ी देर पहले बताया था कि दोनों बॉडीज़ अगर सेम डायरेक्शन में जा रहे हो तो रिलेटिव वेलोसिटी नेगेटिव ली जाती है, 1 - 2 VAB इज इक्वल टू VA - VB, इजंट इट। लेकिन यहाँ पर प्लस लिया जा रहा है। मतलब क्या है, वी नीड टू अंडरस्टैंड बेस्ड ऑन द सिचुएशन, वी नीड टू थिंक। देखो अगर बोट और रिवर, अच्छा ये लिखने से पहले, समझाने से पहले टाइम टेकन फॉर अपस्ट्रीम भी लिख लेते हैं। टाइम टेकन फॉर अपस्ट्रीम AB बाई क्या होगा, AB बाई VB - VR होगा, AB बाई VB - VR। अब थोड़ा इसको समझते हैं क्या बताना चाह रहा हूँ। यस, जब बोट और पानी दोनों एक साथ जा रहे हैं तो इन दोनों के लिए दोनों वेलोसिटीज़ फेवर में हैं। यस, बोट को पहुंचाने में, इजंट इट। तो दोनों वेलोसिटीज़ एडअप होंगी बोट को पहुंचाने के लिए। लेकिन जब पानी खिलाफ है तो अब बोट की वेलोसिटी और पानी की वेलोसिटी दोनों में से माइनस करना पड़ेगा। जाहिर सी बात है बोट की वेलोसिटी ज़्यादा होनी पड़ेगी, दिख रहा है यहाँ पर। VB मस्ट बी ग्रेटर दैन VR, ओनली देन it will reach, isn't it? So I hope this particular point is clear. Time taken for upstream will be AB by VB plus VR. Time taken for downstream will be AB by VB plus VR. Time taken by upstream will be AB by VB minus VR, isn't it? Now अगर still water होता, time taken will be AB by just the velocity of the boat, because river की velocity 0 हो गई। चाहे आप दोनों केसेस में कौन सा भी ले लो, डाउन जाना है या अप जाना है, मतलब वेलोसिटी ऑफ रिवर इन बोथ द केसेस बिकम्स नाउ 0। तो फार्मूला फॉर स्टिल वाटर मिलेगा AB बाई VB। AB इज़ द डिस्टेंस ट्रैवल्ड, VB इज़ द वेलोसिटी ऑफ द बोट ओनली। तो अब इसको कैसे लाएंगे, इन दोनों चीज़ों को, डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम, इन दोनों को अगर मैं इसको इन दोनों इक्वेशंस को रीअरेंज करूँ, पहले वाले को रीअरेंज कर रहा हूँ, VB प्लस VR इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो मिलेगा AB बाई टाइम टेकन फॉर डाउनस्ट्रीम। इसी तरीके से VB माइनस VR लूँगा तो AB बाई टाइम टेकन फॉर अपस्ट्रीम। ट्राइंग टू फाइंड अ रिलेशन बिटवीन द टू, ठीक है। तो इन दोनों को ऐड करूँगा तो ये कैंसिल हो जाएगा। 2VB इज इक्वल टू AB कॉमन 1/T डाउन प्लस 1/T अप, ये मिल जाएगा। अब ऑलरेडी मैंने यहाँ पर बताया स्टिल वाटर के लिए AB बाई VB, स्टिल वाटर के लिए क्या है, T इज इक्वल टू AB बाई VB। इसको यूज़ करके VB यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ तो मिलेगा 2 इंटू AB बाई T इज इक्वल टू AB इंटू 1/T डाउन स्ट्रीम प्लस 1/T अपस्ट्रीम। AB कैंसिल होगा, ठीक है। तो क्या मिलेगा नेक्स्ट, सॉल्व करेंगे इसको। 2/T इज इक्वल टू 1/T अप प्लस 1/T डाउन, इतना बचेगा, isn't it? एलसीएम लेकर सॉल्व करोगे, फाइनल आंसर क्या आएगा, T इज इक्वल टू 2T1 T2 बाई T1 प्लस T2। अगर आप अप एंड डाउन को T1 T2 समझ लें तो फॉर्मूला आएगा 2T1 T2 बाई T1 प्लस, इसको एलसीएम कर लेके देखो यहीं पर पहुँचोगे, 2T1 T2 बाई T1 प्लस T2। इसको सॉल्व करके सब्स्टिट्यूट करेंगे, 2 इंटू T1 कितना है 6 बोला था, T2 कितना है 10 बोला था, T1 प्लस T2 6 प्लस 10 होगा। आंसर आपका लगभग 7.5 के करीब आता है, 7.5। आई होप दिस इज क्लियर। जस्ट गो थ्रू व्हाट हैज़ बीन डन। यस, क्वेश्चन क्या दिया है, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम कैसे लेते हैं, इसको थोड़ा ऑब्जर्व कर लो, ठीक है। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। मैंने एक स्क्रीनशॉट निकाला है ताकि ये दो क्वेश्चंस डायरेक्ट डिस्कस कर लूँ टेक्स्ट बुक से। क्वेश्चन पढ़ो एक बार। 2 ट्रेन्स T1 एंड T2, ये किताब दिनेश से मिलेगा आपको। 2 ट्रेन्स T1 एंड T2 आर रनिंग ऑन 2 पैरेलल ट्रैक्स। यस, 2 पैरेलल ट्रैक्स, 2 ट्रेन्स आर रनिंग। T1 मूव्स विद अ स्पीड ऑफ 40 ड्यू ईस्ट, टुवर्ड्स ईस्ट मतलब ये डायरेक्शन, एंड ट्रेन T2 मूव्स विद अ स्पीड ऑफ 60 ड्यू वेस्ट, यानी ए डायरेक्शन। यानी एक बंदा ऐसे जा रहा है, एक बंदा ऐसे।
T1 और T2, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। पहले वाला कितना 40, दूसरा 60, ठीक है। नाउ विल मूव फॉरवर्ड। कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ ट्रेन T1 विद रेस्पेक्ट टू T2, देन वेलोसिटी ऑफ ट्रेन T2 विद रेस्पेक्ट टू T1, VAB VBA वही करना है, वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विद रेस्पेक्ट टू T1। तो इसको थोड़ा ऑब्जर्व करो अब कैसे सॉल्व करेगा ये। कंसिडर द डायरेक्शन एज पॉजिटिव टुवर्ड्स ईस्ट, नेगेटिव टुवर्ड्स वेस्ट। क्यों? पॉजिटिव एक्स एक्सिस ईस्ट होता है, नेगेटिव एक्स एक्सिस वेस्ट होता है। तो VT1 इज़ +40, VT2 -60, वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड इज़ 0, यानी ज़मीन तो हिलेगी नहीं। वेलोसिटी ऑफ T1 विद रेस्पेक्ट टू T2 इज इक्वल टू VT1 T2 इज इक्वल टू VT1 - VT2। क्लियर है? दिस इज लाइक VAB इज इक्वल टू VA - VB। तो +40 माइनस ऑफ -60, ठीक है, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शंस में जा रहे हैं ना, ऐड होंगे, समझाया था, वही कर रहा है। 100 आया आंसर। तो thus T1 appears to run with the speed of 100 km/h towards east with respect to the train T2। क्लियर है? तो ट्रेन को फील करेगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ट्रेन T1 appears to run with the speed, ट्रेन T1 appears to run with a speed of 100 km/h towards east with respect to train T2। I hope this particular question is clear। Next, velocity of train T2 with respect to T1 उल्टा करना है, -60 -40 किया, आंसर -100। ट्रेन T2 appears to run with a speed of 100 km/h towards west, माइनस इज वेस्ट ना, with respect to train T1। velocity of ground with respect to train T1, VGT1 is equal to VG - VT, VG का 0 है, -40 आ रहा है। द ग्राउंड appears to move with a speed of 40 towards west with respect to T1। T1 देखो ट्रेन ईस्ट को जा रही थी, उस हिसाब से ज़मीन पीछे जा रही है ना, ये 40 से आगे जा रहा है तो ज़मीन रेस्ट पे है, तो ज़मीन 40 से पीछे जा रही है, बोल इसका मतलब है। क्लियर है? आई होप दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज क्लियर। यू कैन हैव अ लुक। आई डोंट थिंक यू नीड टू कॉपी, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। कॉन्सेप्ट समझना ज़रूरी है, किताबों में बहुत सारा कंटेंट मिल जाएगा, बैठकर बाद में स्टडी कर सकते हो। क्लियर है? ये एक और क्वेश्चन, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये जेट प्लेन के बारे में। जेट प्लेन इज़ मूविंग, आई जूम इन अ लिटिल। A jet plane is moving with a velocity. A jet plane is moving with a velocity 500 km/h. The gases are ejecting from the rear of the jet plane. Rear मतलब पीछे, ठीक है। rear सीट, फ्रंट सीट बोलते हैं ना कार में, rear मतलब पीछे होता है। The gases are ejecting from the rear of the jet plane with velocity 1500 with respect to jet। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, with respect to jet। Find the velocity of gases with respect to person on the ground। तो एक जेट प्लेन है जो वेलोसिटी 500 से ऊपर को जा रही है, ठीक है, ये हमारी जेट प्लेन होगी जो 500 से ऊपर जा रही है। द गैसेस आर एजेक्टिंग फ्रॉम द रेयर ऑफ द जेट प्लेन विद 1500 विद रेस्पेक्ट टू जेट। मतलब गैसेस जो नीचे आ रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू जेट बोला है, तो ये क्लियर कट VGJ है, वेलोसिटी ऑफ गैस विद रेस्पेक्ट टू जेट। यानी ये जो वैल्यू दिया है रिलेटिव वेलोसिटी की वैल्यू है, डायरेक्ट वैल्यू नहीं है। अगर बोलता विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड तो डायरेक्ट वैल्यू होती। Find the velocity. Consider the directions positive towards y-axis, negative towards negative y-axis। यानी ऊपर पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव लिया है। Let the jet plane move on positive x, y and gases move in negative y। Velocity of jet plane VJ is equal to 500, ये अभी बताया। Velocity of jet दिया है डायरेक्टली। Velocity of gas with respect to jet plane, ये देखो ऑब्जर्व करो, VGJ is velocity of gas with respect to jet is equal to relative VG minus VJ is equal to -1500। माइनस क्यों लिया? गैस with respect, gas going down with respect to the plane, yes, this relate to this, gas is moving downwards, तो -1500। VG is equal to -1500 प्लस VJ ऐड होगा, ठीक है। तो VJ ऐड होने पर -1500 प्लस 500 -1000 km/h। तो वेलोसिटी ऑफ गैसेस विद रेस्पेक्ट टू पर्सन स्टैंडिंग ऑन ग्राउंड इज 1000 km/h, 1000 km/h। आई होप दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट इज क्लियर। ऑल राइट, यहाँ तक हम हो गए। इफ़ यू वांट टू टेक अ ब्रेक, टेक अ 5 minutes गैप बाय स्टॉपिंग द वीडियो। नो, इफ़ यू वांट टू कंटिन्यू विल जस्ट डू अनदर 1 or 2 sums that will clear this concept, ठीक है। नाउ लेट अस मूव फॉरवर्ड। Yes, so let us take another question. One day, say take one of your friends name, let us say Kabir one day reached to metro station, travels to top of a stationary escalator in time T1, ठीक है। One day Kabir reaches to metro station, travels to top
ऑन अ स्टेशनरी एस्केलेटर. एस्केलेटर किसको बोलते हैं? वो मूविंग वाले जो सीढ़ियाँ होती हैं उसको बोलते हैं एस्केलेटर. ये रहा हमारा कबीर एंड ही इज़ गोइंग टू मूव अप द एस्केलेटर इन टाइम से t1 seconds. दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. ठीक है. नेक्स्ट डे ही स्टैंड्स ऑन द, अच्छा लेट मी रिपीट द क्वेश्चन, जस्ट ऑब्जर्व व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल. वन डे कबीर रीच टू मेट्रो स्टेशन, पहुंच गया मेट्रो स्टेशन. ट्रैवल्स टू टॉप ऑन अ स्टेशनरी एस्केलेटर, यानी ये सीढ़ियाँ अभी काम नहीं कर रही हैं, खड़ी हुई हैं. दीज स्टेयर्स आर जस्ट स्टैंडिंग देयर, यानी मशीन इज़ नॉट वर्किंग. एज इट इज़ देयर, दिस गाय इज़ मूविंग, यानी ऑन अ स्टेशनरी एस्केलेटर ही इज़ मूविंग विथ t1. ठीक है. नेक्स्ट डे ही स्टैंड्स ऑन मूविंग एस्केलेटर. सेकेंड डे ये भी मूव कर रहा है और ये भी मूव कर रहा है. सेकेंड डे ये स्टैंड्स ऑन मूविंग एस्केलेटर, यानी सेकेंड केस में सॉरी जस्ट रीड्रॉ दिस. सेकेंड केस में ये हो रहा है कि मूविंग एस्केलेटर पे ये बंदा सिर्फ खड़ा है, ये जा नहीं रहा है कहीं पर भी, इसकी वेलोसिटी 0 है, लेकिन ये स्टेयर्स जा रहे हैं. ठीक है. मूविंग एस्केलेटर टेक्स t2. ठीक है. ये t2 टाइम में रीच होगा टॉप पे. थर्ड डे, तीसरे दिन, ही वॉक्स ऑन अ मूविंग एस्केलेटर, यानी तीसरे दिन में ये बंदा भी, कबीर भी जो है थोड़ा अर्जेंट में है, लेट हो गया शायद, तो ये बंदा भी मूव कर रहा है, एस्केलेटर भी मूव कर रहा है. हियर दिस इज द न्यू टाइम. तो वी नीड टू फाइंड व्हाट इज़ द टाइम टेकन. थर्ड डे ही वॉक्स ऑन अ मूविंग एस्केलेटर, देन फाइंड द टाइम टेकन टू रीच द टॉप. तो ये ए बी की तरफ है, पॉइंट ए से पॉइंट बी जाना है. ठीक है. क्वेश्चन समझ में आ गया. वन डे कबीर इज़ रीचिंग द मेट्रो स्टेशन, traveling to the top from the escalator which is stationary. तो सिर्फ ये बंदा चल के जा रहा है तो टाइम t1 ले रहा है. जब वो चलते हुए एस्केलेटर में खड़ा हो रहा है तो टाइम t2 आ रहा है. अब ये पहचानना है कि जब एस्केलेटर भी मूव कर रहा है, ये भी मूव कर रहा है, तो टाइम क्या हो रहा है. तो बेसिकली वी नीड टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन ऑल दीज. तो सबसे पहले हाउ विल यू सॉल्व? t1 can be written as ab, that is the distance he moves, divided by velocity of the person, t1, whereas t2 can be written as ab divided by velocity of the escalator. ये आप देख सकते हो. फर्स्ट केस ये वाला है, t2 ये वाला केस है. यहाँ पर बंदा स्टेशनरी था ना, इन दिस ही वॉज वॉकिंग ऑन अ स्टेशनरी एस्केलेटर. सीढ़ियाँ नहीं चल रही थी, ये अकेला चला, तो वेलोसिटी ऑफ पर्सन लिखा. t2 में एस्केलेटर फिर रहा है, तो ए बी बाई वी ई एस. ठीक है. नाउ अगर वो भी चल रहा है और ये भी चल रहा है तो टाइम t इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ पर्सन प्लस वेलोसिटी ऑफ एस्केलेटर. क्यों प्लस लिया? जस्ट ऑब्जर्व, स्टॉप हियर एंड ऑब्जर्व. क्यों लिया प्लस? क्योंकि पर्सन भी ऊपर जा रहा है, एस्केलेटर भी ऊपर जा रहा है, दोनों सपोर्ट कर रहे हैं बंदे को ए से बी पहुंचने में. करेक्ट है ना? तो ये बंदा साथ दे रहा है पर्सन के. So in this case both will be added, although both are going in same direction. I hope you are trying to, why am I stressing this point again and again? Because जब दो बॉडीज़ मूव करती हैं ऑपोजिट तो ऐड करते हैं, जब दो बॉडीज़ एक साथ मूव करती हैं तब भी ऐड करते हैं, रिलेटिव टू वन अनदर के लिए. यहाँ पर रिलेटिव टू वन अनदर का टॉपिक नहीं हो रहा है, यहाँ पर टॉपिक हो रहा है टाइम के बारे में. कितने टाइम में दोनों अगर साथ जाएंगे तब पहुँचेंगे, तो दोनों को ऐड करना पड़ेगा. आई होप यू आर एबल टू फॉलो दिस पर्टिकुलर बिट. तो t इज इक्वल टू ए बी बाई वी पी प्लस वी ई आर. तो अब सब्स्टिट्यूट करो जल्दी जल्दी. यस, सब्स्टिट्यूट कैसे करेंगे? ए बी बाई वी पी की जगह ए बी बाई t1 प्लस ए बी बाई t2. ठीक है. अब ये एलसीएम काटना, इसको सॉल्व करना. ठीक है. तो फाइनल आंसर लिख रहा हूँ मैं, t1 t2 बाई t1 प्लस t2. This is the value for time for a person, how much time he will take when he is also moving, escalator is also moving. So I hope this particular thing is clear. Now let us move on to the next topic. Next topic is, yes, two-dimensional relative motion. Two-dimensional, yes, two-dimensional relative motion. इसमें क्या पॉइंट याद रखना है? इट यूजेस वेक्टर सब्ट्रैक्शन. ठीक है. वेक्टर सब्ट्रैक्शन यानी वेलोसिटी ऑफ ए
relative to B will now be VAB is equal to VA माइनस VB लिखते थे, बस फ़र्क है सर पे टोपी डालना है, यानी वेलोसिटी, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड। अब क्योंकि रिलेटिव में 2 डायमेंशनल है, यानी एक्स एक्सिस में भी होगा, वाई एक्सिस में भी होगा, तो ये चीज़ें हैं, उस हिसाब से चलना है, तो इसलिए वेक्टर सब्ट्रैक्शन फॉलो करना है फॉर रिलेटिव। तो एक एग्जाम्पल दे के इस चीज़ को मैं आसानी से कवर कर पाएंगे। यस, लेट अस लुक एट द एग्जाम्पल। लेट्स मूव फॉरवर्ड, लेट अस टेक अ क्वेश्चन। यस, okay, now the question is, a car moves in east direction. There is a car which moves in the east direction. Car moves in the east direction with velocity 20 meters per second. You can note it down. A car moves in east direction with velocity 20 meters per second. ठीक है, car moves in east direction with velocity 20 meters per second. Full stop. Driver of car observes a train. Driver of car observes a train. Driver of car observes a train moving with 20 root 2 meters per second. Driver of car observes a train moving with 20 root 2 meters per second with northeast direction. ठीक है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, ये तो मैं डायरेक्टली नहीं बता सकता, नॉर्थ ईस्ट बता रहा ना वो, तो डायरेक्शन टेढ़ा होगा, डायरेक्शन टेढ़ा होगा ट्रेन का। इज़ ऑब्जर्विंग एट 20 रूट 2 मीटर्स पर सेकेंड। नॉर्थ ईस्ट मतलब देखो ये हमारा नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, कार ऐसे मूव कर रही है, ट्रेन ऐसे मूव कर रही है, करेक्ट है। देन फाइंड द एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन, एक्चुअल वेलोसिटी। क्लियर है, तो ये आपका क्वेश्चन है। कैसे सॉल्व करेंगे? ये आपकी कार है जो ऐसे जा रही है। यस, आई चेंज द कलर सो दैट, हाँ रेड ले लेते हैं, दिखाई देगा। ये आपका वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन है, ठीक है, जो 20 रूट 2 के हिसाब से जा रही है। अब इसको क्या करना है, इसका मैं अगर थीटा ले लूँ 845 आएगा ना। साउथ वेस्ट नॉर्थ ईस्ट जब भी बोलता है ना तो याद रख लो 45 डिग्री लेता है, बिकॉज नॉर्थ ईस्ट का मतलब कम्प्लीटली इन दोनों के बीच में मतलब 45 पे काटेगा, तो 45 डिग्री लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर कॉस कंपोनेंट आएगा 20 रूट 2 कॉस 45, इधर आएगा 20 रूट 2 साइन 45। क्लियर है, तो ये आपका आंसर है। नाउ ये जो जा रहे हैं, कार जा रही है ना, यस, द कार विच इज़ गोइंग, इट इज़ गोइंग लाइक दिस। वेलोसिटी ऑफ कार विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड ही दिया है, ठीक है। तो ये सिर्फ ये बंदा रिलेटिव दिया है, इज़न्ट इट, ट्रेन का। तो अब क्या करेंगे, वेलोसिटी ऑफ कार विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, इसको बोल देंगे 20 आई कैप, क्योंकि एक्स एक्सिस में जा रहा है। वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विथ रेस्पेक्ट टू कार का ऑब्जर्वर ना, कार के हिसाब से, कार से ऑब्जर्वर देखा ना, क्वेश्चन में बोला था ड्राइवर ऑफ द कार ऑब्जर्व्स अ ट्रेन मूविंग, तो ड्राइवर के हिसाब से कार 20 रूट 2 के हिसाब से जा रही है, मतलब वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विथ रेस्पेक्ट टू द कार। दिस आई विल राइट एज 20 आई कैप प्लस 20 जे कैप। अब आप सोचेंगे 20 कैसे लिख लिया, ये 20 रूट 2 कॉस 45 जब करोगे तो कॉस 45 का 1/√2 आता है, रूट 2 और ये रूट 2 20 वाला कैंसिल होकर 20 आता है। चाहे कॉस 45 ले लो, साइन 45 ले लो, 1/√2 आंसर है, तो कैंसिल होकर 20 ही मिलता है। तो 20 आई कैप प्लस 20 जे कैप जब आप इसको कॉम्पोनेंट्स में कन्वर्ट करते हो, क्लियर है, तो कॉम्पोनेंट्स में कन्वर्ट कर देने से काम आसान हो जाता है। तो VTC, अब हमारा VTC इज इक्वल टू VT माइनस VC। VT विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड है, C विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड है। फर्स्ट केस में बताया था, फर्स्ट वाला जो पेज में मैं लिख रहा था उसमें मैंने बताया था VA माइनस VB को लिख सकते हैं VAG माइनस VBG विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड लिख सकते हैं, करेक्ट है ना। तो VTC को मैं लिखूँगा 20 आई कैप प्लस 20 जे कैप इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड जो पहचानना है माइनस 20 आई कैप, करेक्ट है। तो आंसर ये इधर को आएगा, आंसर आएगा 40 आई कैप प्लस 20 जे कैप इज इक्वल टू VTG। वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड इज 20 आई कैप, 40 आई कैप प्लस 20 जे कैप।
क्लियर है? तो वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, मैग्नीट्यूड उसका कितना होगा, रूट ऑफ 40 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर, 20√5 आएगा आंसर, 20√5। एंड एंगल अगर मालूम करना है tan अल्फ़ा करेंगे तो y कॉम्पोनेंट बाई x कॉम्पोनेंट ना, तो आंसर हाफ आएगा। ठीक है, तो विथ रेस्पेक्ट टू क्या है, ईस्ट, क्योंकि tan अल्फ़ा जो मैंने लिया अभी ना वो नीचे का है, ये हिस्सा लिया है। ठीक है, तो विथ रेस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस लिया, यानी एक्स एक्सिस तो ईस्ट है, इसलिए अल्फ़ा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ हाफ ड्यू ईस्ट with respect to east, sorry not right, due east with respect to east. So I hope this particular topic I have understood it. Yes. Oh, just go through what has been done, just go through the whole class. Yes, turn your pages. तो आखिरी क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन डायरेक्टली बता देता हूँ। इफ़ 3 persons आर एट कॉर्नर्स ऑफ अ इक्विलैटरल ट्रायंगल, एक ट्रायंगल ले लेते हैं, ठीक है, एक ट्रायंगल ले लेते हैं जो कि इक्विलैटरल है समझो, ठीक है। नाउ इक्विलैटरल ट्रायंगल, 3 persons आर एट कॉर्नर्स ऑफ अ इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑफ साइड ए, तीनों साइड ए है, तीन तरफ 3 लोग हैं, ठीक है। तो अब करना क्या है, इफ़ ए मूव्स टूवर्ड्स बी विथ वेलोसिटी v, ए बी और सी हैं, ए इज़ मूविंग टूवर्ड्स बी विथ वेलोसिटी v, बी इज़ मूविंग टूवर्ड्स सी विथ वेलोसिटी v, सी इज़ मूविंग टूवर्ड्स ए विथ वेलोसिटी v, यानी तीनों एक दूसरे की तरफ चल रहे हैं। तो टूवर्ड्स ए विथ वेलोसिटी v, देन द मीटिंग टाइम टेकन टू मीटिंग टाइम क्या होगा। असल में जब ये बंदा शुरू होके इधर जाएगा तभी ये बंदा भी साथ ऐसे जाएगा, तो इसका पाथ लगभग ऐसे आएगा। यस, और उसी तरीके से ये बंदे का पाथ इसको पीछे, ये शुरू में यहाँ है ना, ऐसे जाएगा, तो ये बंदा भी, हाईलाइटर बता रहा हूँ, ये ऐसे जाएगा, तो ये बंदा ऐसे शुरू होगा, लेकिन जैसे जैसे ये बंदा नीचे को जाएगा ये बंदा ऐसे जाएगा ना, तो उसी तरीके से ये बंदा भी आके ऐसे, तो मीटिंग पॉइंट कुछ ऐसे होगी कि यहाँ पर आकर मिलेंगे सारे। तो इसमें कॉन्सेप्ट ये है कि वेलोसिटी जो इसकी है पहले v है, ये बंदा जब ऐसे जा रहा है तो ये एंगल 60 है, तो वेलोसिटी के कंपोनेंट्स निकाल लें, तो यहाँ पर आएगा v cos थीटा, v cos 60, isn't it? तो अब टाइम टेकन टू जस्ट अ मिनट, हाँ, टाइम टेकन टू मीट क्या होगा ये पहचानना है, ठीक है। टाइम टेकन टू मीट विल बी इक्वल टू, जस्ट अ मिनट, सबसे पहले रिलेटिव वेलोसिटी विल बी व्हाट, रिलेटिव वेलोसिटी इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन विल बी, इसका v है, दूसरे का v cos थीटा है। यस, तो ये v प्लस v cos 60 इज 3/2, cos 60 हाफ आएगा, isn't it? तो आंसर आएगा 3v/2, दिस विल बी द रिलेटिव वेलोसिटी, यानी सिर्फ हॉरिजॉन्टल ले रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल, रिलेटिव हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ले लिया। और अच्छा, ये कॉन्सेप्ट क्या है, अगर मैं चाहूँ तो पूरा वेलोसिटी कंसिडर कर सकता हूँ, लेकिन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सबके सेम आ रहे हैं, तो मैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स के साथ भी लूँगा तब भी टाइम सेम है, वर्टिकल के साथ लूँगा तब भी टाइम सेम है, दोनों मिला के लूँगा तब भी टाइम सेम ही आना चाहिए। तो मैं हॉरिजॉन्टल पकड़ के चल रहा हूँ। तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल में क्या था देख लो, यहाँ पर वेलोसिटी v से जा रहा है, तो ये बंदे का v cos 60 आ रहा है, उसी तरीके से इसको और उसको करोगे तब भी वैसे ही आएगा। तो एक को लेके चलते हैं, तो रिलेटिव वेलोसिटी इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, टाइम विल बी गिवन बाय रिलेटिव वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल बाय रिलेटिव वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल, आई एम रीराइटिंग इट, टाइम टेकन टू मीट विल बी गिवन बाय रिलेटिव डिस्टेंस बाय रिलेटिव वेलोसिटी, पूरा हॉरिजॉन्टल है, रिलेटिव डिस्टेंस हर एक के बीच में ए था, सब सेम वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहे हैं, तो हमेशा जब भी वो ट्रैवल करेंगे सबके बीच में डिस्टेंस यही होगा ना, तो बाय रिलेटिव वेलोसिटी 3v/2 जो अभी पहचाना, तो आंसर आया 2a/3v, दिस विल बी द थिंग। तो इसी तरीके से अगर एक स्क्वायर दे देता, यस,
अगर एक स्क्वायर दे देता, 1 मिनट, हाँ, अगर एक स्क्वायर दे देता और ए बी सी डी होता, अब सब एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं, यस, तो तब टाइम, मीटिंग टाइम क्या होगा? यस, ए बाई वी बनेगा, ए बाई वी, इजंट इट? चेक करके देख लो, जैसे भी आएगा। तो आई होप दिस इज़ अंडरस्टूड। तो यहाँ पर आपका रिलेटिव वेलोसिटी कॉन्सेप्ट ख़त्म होता है। वी हैव अ फ्यू मोर, वी हैव टू डिस्कस द मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस अगेन एंड अगेन जो आते हैं। अम्ब्रेला, रेन एंड अम्ब्रेला वाला प्रॉब्लम आता है, और फिर अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम जो बोट का किया था, टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर वाला एक केस आता है। ठीक है, तो ये 2 टॉपिक्स अभी भी बचे हुए हैं। रेन अम्ब्रेला का प्रॉब्लम बचा हुआ है एंड टाइम टेकन बाय द बोट टू क्रॉस द रिवर इन शॉर्टेस्ट पाथ के लिए कितना और शॉर्टेस्ट टाइम के लिए कितना। तो ये 3 केस बचे हैं। अगर ये ख़त्म हो जाए तो ये पूरा टॉपिक क्लियर। I hope, I think we'll stop at this. We have discussed enough related to these. Please try to solve in your modules. Assalamu alaikum warahmatullah.